Very good evening to all of you, my dear friends, and each and everyone who is watching my videos. And again, once again, welcome back to my YouTube channel, Learn with Joita. I hope the videos are beneficial for you. It is helping you to understand some of the cracks in the law, and the informations which are given in the videos are also helping you. And if the information and the video you are liking it, then please share and subscribe my channel, like my videos, and also be with me to learn law in a very interesting way. So, in my last session, that is yesterday, we have discussed one social evil, that is 304B IPC. And what we have discussed in our last class yesterday is about what is 304 IPC, the ingredients of 304B IPC, and also the punishment classification of the section of 304B IPC, and also the definition of the dowry and why the dowry is being taken, and some of the case laws. Now, and also we have discussed the importance of the period that is mentioned in the particular section, that is 304B IPC, 7 years of time, and also soon before her death, and the causal connection between the death and the cruelty and harassment and the dowry. Okay, so today we are going to discuss about the same section, और जो कल कुछ समय के कारण हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लोग वापिस से ये सेक्शन 304B IPC को आई वांट टू रीड, ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए। एक बार माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। देन 304B IPC, द हेडिंग इज डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन, हियर wife is not mentioned, woman. Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances, that means unnatural death. ठीक है, within 7 years of her marriage, 7 साल के अंदर, and it is shown that soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Okay. Now, explanation. For the purpose of this subsection, dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961. And subsection 2 says, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. That means the classification is, it is a session triable case, cognizable, non-bailable and non-compoundable. Non-compoundable means जिसमें सुलह समझौता नहीं हो सकता। cognizable means यहाँ पे सेक्शन 41 CRPC का इंग्रेडिएंट्स है कि cognizable में सिंपली हम अभी इतना ही बताएंगे। इन माई नेक्स्ट वीडियोस आई विल डिस्कस अबाउट cognizable एंड नॉन cognizable ऑफेंसेस। तो यहाँ पे मैं सिंपली इतना बताना चाहूँगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस के पास एक अथॉरिटी होती है अपने आप में कि वो विदाउट एनी वारंट
जो जिसके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट की गई है या कोई एफआईआर दर्ज हुआ है उसको तुरंत अरेस्ट कर सके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। उसमें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट वारंट जो हम बोलते हैं वो वारंट की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, नॉन बेलेबल है मतलब आसानी से बेल नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है कि बेल मिलेगा ही नहीं, हाँ बेल मिल सकता है, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम लोग इसमें मतलब नॉन बेलेबल इसलिए माना गया है कि उसमें बेल नहीं मिल सकता आसानी से, क्योंकि इसमें सेक्शन 436 एंड 437 का जो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में कैसे बेल दिया जाता है ये इंग्रेडिएंट है। आई विल डिस्कस अबाउट इट बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इन माय नेक्स्ट वीडियो। I will go through the two important very topic, that is cognizable and non-cognizable offense and bailable and non-bailable offense. So don't worry about that. अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखो, सिंपली बहुत ज़्यादा किसी भी सेक्शन में उलझ मत जाना, क्योंकि उलझ जाएंगे आप लोग तो निकल नहीं पाएंगे, और निकल नहीं पाएंगे तो लॉ आपको उलझा के रख देगा। ये इसको आप हमेशा ऐसे मानिए कि भाई हम घुसेंगे तो जरूर, जाएंगे तो डेप्थ तक, लेकिन सारा ज्ञान लेकर निकल के भी आएंगे, इतना एटीट्यूड आप रखिए। और ऐसा लगे कि आपसे ना एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विथ यू, ऐसा कोई भी आपके साथ भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर विथ मी, अच्छा लगेगा मुझे इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ, कि मैं अपने लिए पहले मैं अब लॉ को कैसे टैकल की। पहले मुझे भी दिक्कतें हुई थी कि अरे यार क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता, कुछ सेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बेयर एक्ट पढ़ने से तो बाप रे बहुत मतलब समझने से बाहर हो जाता था। देन एक मेरा एटीट्यूड हमेशा बना था कि देखते हैं कैसे नहीं होगा, ऐसा क्या चीज़ है कि किसी और ने कर लिया और मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यही बात है जो कल हम लोग थॉट शेयर किए थे ना, कि 1 सेकेंड और 1 मोमेंट मोर हैंगिंग अप, कि आप अपने कंपटीटर से 1 मिनट भी ज़्यादा अगर इसमें हैंग अप कर लिए हैं, इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप निकल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा उलझिए मत। फिलहाल सिर्फ आप इतना क्लासिफिकेशन याद रखिए कि 304B IPC 7 ईयर्स नॉट लेस देन 7 ईयर्स की पनिशमेंट है, मतलब 7 साल से नीचे की पनिशमेंट नहीं है, मतलब 7 साल की ही पनिशमेंट है, बट इट में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये सेशन ट्रायबल केस है और कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग कल ये पढ़े थे कि सून बिफोर हर डेथ में क्या होता है, कि सून बिफोर हर डेथ वी हैव डिस्कस्ड I think 2, 3 and more cases regarding this soon before her death. soon before her death में जो मेन पॉइंट है कि जो क्रूएल्टी और हेरसमेंट है जिसके वजह से ये डेथ ऑकर हुआ है, वो बहुत रिमोट नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत पुराना नहीं होना चाहिए या स्टेल नहीं होना चाहिए, मतलब वो उसी वुमेन के दिमाग में कि बहुत पुरानी बात है बोल के उसके दिमाग से वो हट गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप बोल सकते हैं कि उसको हमेशा मतलब किया जा रहा है, ये हमेशा ताज़ा घाव देते जा रहा है, जिसके वजह से वो मतलब she get so tormented, she get so disturbed with this, she is living such a ignored life, such a betrayed life, such a disappointed life कि either she has committed suicide after such cruelty और harassment, या तो फिर उसको मर्डर कर दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब आप देखिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ से ये सेक्शन का पढ़े हैं, तो हम लोगों ने ये 7 ईयर्स का जो इम्पोर्टेंस है ये तक समझ लिए हैं, सुन बिफोर हर डेथ भी समझ लिए हैं। अब आप देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको मार्क कर लीजिएगा, जो शब्द को ना द वर्ड और द पैराग्राफ विच इज़ इम्पोर्टेंट, आई एम गिविंग मोर स्ट्रेस, उसको आप लोग भी ना हो सके तो मार्क कर लीजिए बॉक्स में किसी भी तरीके से, कि उस चीज़ों को आपके दिमाग में बैठ जाए। व्हेन यू गो अगेन थ्रू द बेयर एक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कि आपको सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से याद हो जाए।
अच्छा, इसमें आप देखिए वेयर द डेथ ऑफ ए वुमेन लिखा है, ठीक है, वुमेन लिखा है, वाइफ की बात नहीं है। अब वाइफ की बात जब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लीगली वेडेड वाइफ की ही बात की जा रही है। सेकंड वाइफ जो हम लोग 498A में पढ़े थे कि वेदर अब डाउरी कौन देता है, दहेज देता कौन है, दहेज ऑब्वियसली लड़की पक्ष ही देती है लड़के पक्ष को, तो ये इम्प्लाइड है। और ऑब्वियसली भाई शादी होगा तभी वाइफ होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो वेदर इट इज़ ए लीगली वेडेड वाइफ और यू नो सेकंड मैरिज है या कोई इलीगल मैरिज है, कोई वॉयड मैरिज है, इट इज़ अ वुमेन एंड हु एवर गेट्स द पोजिशन ऑफ द वुमेन, तो वहीं पे आपने डाउरी डेथ वाला सेक्शन 304B IPC एंड 498A IPC को आप इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वर्ड की वैलिड लीगली वेडेड वाइफ ये सब करके नहीं लिखा गया है, ठीक। अच्छा, अब आप इसको पढ़ते हुए आइए, यहाँ पे लाइन क्या लिखा है, वेयर द डेथ ऑफ ए वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage and it is shown, अब आप इस जगह को मार्क करिए, इट इज शोन। इट इज शोन के मतलब क्या है, ये यहाँ पे इट इज शोन क्या है, इट इज शोन का मतलब होता है कि इन जनरली जो एविडेंस का बात है, जहाँ पे सबूत की बात आती है, तो क्रिमिनल लॉ में देखिए क्योंकि पनिशमेंट ज़्यादा है ना। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में मेन बेसिक डिफरेंस जो है ये हम लोग सभी जानते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये हम लोग सब इसमें इसको जानते हैं कि सिविल लॉ में ऑलवेज द रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है, या स्टेटस को पोजीशन रेस्टिट्यूशन इंटीग्राम जो होता है, या फिर उसी मतलब हम कंपेंसेशन देके सिविल का जो रेमेडी होता है वही है। लेकिन इन क्रिमिनल लॉ द रेमेडी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो आप खुद ही सोचिए ना, एकदम जनरली दिमाग से सोचिए कि कहीं पे आप महज कुछ रुपए दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000 20,000 25,000 आप एक कंपेंसेशन दे रहे हैं, हाँ, और कहीं पे आपका जो एक्यूज्ड है उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसका, या तो 7 साल की सज़ा है, 7 ईयर्स। इसी पर्टिकुलर 304B IPC को अगर हम लोग लेते हैं तो उसका पनिशमेंट क्या है, 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। तो भाई दोनों में सबूतों में भी तो डिफरेंस होगा, एविडेंस का जो एविडेंस लिया जाता है उसमें भी एक ही तरीके के कि आप कहाँ तक साबित कर रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग जो होती है वो अलग हो जाएगी ऑब्वियसली। तो सिविल इन क्रिमिनल लॉ इट इज़ ऑलवेज माना जाता है कि प्रूविंग का जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग है इन क्रिमिनल लॉ इट इज़ ऑलवेज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना पड़ता है, और सिविल लॉ में होता है प्रिपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। लेकिन इस सेक्शन में पर्टिकुलरली आपको एक वर्ड मिल रहा है, इट इज शोन। ये 3 वर्ड खाली बता रहा है कि इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हेरासमेंट, ठीक। ये इट इज शोन से मतलब क्या हो रहा है कि हमको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सेक्शन IPC में ऐसे जहाँ पे आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूफ करना पड़ता है, बट व्हेन वी कम टू सेक्शन 304B IPC यहाँ पे आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्राइमा फेसी एविडेंस इनफ है, प्राइमा फेसी एविडेंस इनफ है कि आप
प्राइमा फेसी साबित कर देते हैं कि हाँ यस सुन बिफोर हर डेथ शी इज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड हेरासमेंट एंड दस क्रुएल्टी और हेरासमेंट इज रिलेटिंग टू डाउरी, दहेज से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, एंड विच रिजल्टेड इन द कमीशन ऑफ सुसाइड और मर्डर, डेथ ऑफ द वुमेन। ये तीनों का कनेक्शन आप प्राइमा फेसी अगर साबित कर सकते हैं विद इन 7 years ऑफ द पर्टिकुलर मैरिज, यही क्रुएल्टी और हेरासमेंट के वजह से इसी वुमेन की मृत्यु हुई है। 7 साल के शादी के अंदर पीरियड गैप, इसी 7 साल के शादी के अंदर उसी पर्टिकुलर वुमेन के ऊपर उसके पति या पति के कोई भी रिलेटिव द्वारा क्रुएल्टी और हेरासमेंट किया गया, और ये क्रुएल्टी और हेरासमेंट किससे कनेक्टेड है? दहेज से कनेक्टेड है। और ये दहेज के लिए जो प्रताड़ना या उत्पीड़न किया गया है उसी के चलते इसी वुमेन का डेथ हुआ है। बस इतना आप प्रूफ कर दें, प्राइमा फेसी एविडेंस इज एनफ। इसको क्रुएल्टी को या हेरासमेंट को या दहेज मृत्यु को आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए इस सेक्शन यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है कि मतलब एक रीजनेबली प्रूडेंट मैन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ भाई एविडेंसेस ऐसे हमने दिए हैं, वेदर इट इज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिए हैं या डायरेक्ट एविडेंस दिए हैं या किसी भी टाइप के हम लोगों ने एविडेंस दिए हैं, तो उससे हम लोग पूरा कोई भी रीजनेबली प्रूडेंट मैन को अगर हम लोग पूछे तो वो बता देगा कि हाँ हाँ ये यही हुआ है। तो यहाँ तक हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज 304B IPC क्रुएल्टी और हेरासमेंट विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर वुमेन, दहेज के लिए मृत्यु किसी वुमेन की हुई है विद इन द पीरियड ऑफ द 7 years ऑफ मैरिज, तो इस चीज़ को हमको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरी नहीं है। ओनली द प्राइमा फेसी एविडेंस इज इनफ, ओनली द प्राइमा फेसी एविडेंस इज इनफ टू स्टैंड अप द केस एंड टू कन्विक्टेड द एक्यूज्ड। ओके, अब देखिए इसका हमको रेफरेंस कहाँ से मिलता है। प्लीज फॉर 1 minute come to section 113B इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 113B 113B इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। अब कोर्ट क्या प्रिजम्पशन ले सकता है? When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused the dowry death। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलता है? कोर्ट अपने आप में अनुमान लगा लेगा। आप खाली इट इज शोन, आपको खाली प्राइमा फेसी केस स्टैंड अप करवाना है कि हाँ क्रुएल्टी हुई है विद इन द पीरियड ऑफ दिस 7 years, वो पर्टिकुलर वुमेन के साथ क्रुएल्टी हुई है या हेरासमेंट हुई है। ये क्रुएल्टी और हेरासमेंट कनेक्शन किसके साथ है? दहेज के साथ है, और इसी के चलते इसी वुमेन की मृत्यु हुई है, वेदर शी हैज कमिटेड सुसाइड और शी हैज बीन किल्ड। ठीक, अब किल्ड हो जाएगी तो 302 भी अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ पे भी देखिए आप, इफ़ यू गो थ्रू द पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ पे भी मतलब 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे भी देखिए पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन लिखा हुआ है, हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऐसा करके लिखा नहीं हुआ है, अलग अलग करके। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि बाय हर हस्बैंड, मतलब 304B IPC अगर हम लोग पढ़े तो क्या लिखा है? बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, लेकिन आप
113B इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे पर्सन लिखा हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो पति हो सकता है, पति के सगा संबंधी, उसके रिलेटिव हो सकता है, या कोई अदर पर्सन हो सकता है, मतलब घर के बाहर वाले नहीं, उसके रिश्तेदारों में से कोई भी हो सकता है कि जिसने हैरेसमेंट या क्रुएल्टी किया है उस वुमेन के ऊपर, किसके लिए, डाउरी के लिए, एंड एज ए रिजल्ट शी हैज कमिटेड आइदर सुसाइड और शी हैज बीन किल्ड बाय सच पर्सन। तो कोर्ट अपने आप में प्रिज्यूम कर लेगा, कोर्ट अपने आप में अनुमान लगा लेगा कि यस दैट पर्सन हैज कमिटेड सच एन ऑफेंस। ठीक है, आप लास्ट लाइन पढ़िए इसी सेक्शन का, 113B इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वर्ड क्या है, शैल है कि विल है, शैल है, शैल है मतलब कि कोर्ट प्रिज्यूम लेगा ही लेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा ही लेगा इसमें। ठीक, हाँ, आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तो इसी से कनेक्टेड है। शैल प्रिज्यूम में क्या है, इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करना चाहेंगे। प्लीज़ एक बार सेक्शन 4 में आप लोग आइए, प्रिजम्पशन में, प्रिजम्पशन वाला सेक्शन 4 में खाली ओनली शैल प्रिज्यूम हम लोग मैं पढ़ रही हूँ। शैल प्रिज्यूम, आई लाइक टू रीड इट। वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, कौन सा एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, वर्ड क्या है, शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। वर्ड्स को पढ़िए, वर्ड्स को समझने की करिए, एक एक शब्द की बारीकियों को समझिए। Whenever it is directed by this act, कौन सा एक्ट, हम लोग यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात कर रहे हैं। इस एक्ट में जहाँ जहाँ पे बोला गया है whenever it is directed by this act that the court shall presume, कोर्ट अपने आप से प्रिजम्पशन ले लेगा, अनुमान लगा लेगा कि यस हाँ ये हुआ है। शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, किसी भी तथ्य को, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, हम लोग क्या मान के चलेंगे, कोर्ट क्या मान के चलेगा कि यस इट इज प्रूव्ड, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। अब डिसप्रूव्ड की बर्डन किस पे है, डिसप्रूव्ड की बर्डन किस में है, दूसरे पार्टी पर, मतलब एक्यूज्ड पर। ठीक, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए ए एक वुमेन है, ए एक वुमेन है जिसके मृत्यु हो चुकी है, वाई 304B IPC, दहेज मृत्यु जिसकी हुई है, तो उसके रिलेटिव ने 304B की केस की, किसके ऊपर, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ न्यायालय में। ठीक, अब जो प्लेंटिफ है, जो पिटिशनर है, जो मतलब वुमेन के जो रिलेटिव है, वो उसको कितना प्रूफ करना है, उसको सिर्फ प्राइमा फेसी केस तक प्रूफ करना है। प्राइमा फेसी केस उसको खाली खड़ा करना है, ओनली प्राइमा फेसी, एज इट इज शोन, एज इट इज शोन। ये वर्ड आपको 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मिलेगा कि इट इज शोन एंड इट इज शोन, एंड सेम वर्ड आपको 304B IPC में भी मिलेगा, एंड इट इज शोन। ठीक, इस वर्ड को आप लोग मार्क कर ली कि आपको ओनली प्राइमा फेसी केस स्टैंड अप करवाना है कि यस देयर इज अ डाउरी डेथ ऑफ a particular woman within 7 years of her marriage, and the death is directly connected with any kind of cruelty or harassment, and the particular cruelty or harassment is directly connected with dowry, and the death of the particular woman is only due to the cruelty or harassment by husband or any of the relative of the husband, only because of the dowry, only because of the cruelty or harassment for demand of dowry। ठीक है,
यहाँ तक आपको खाली प्राइमा फेसी खाली केस स्टैंड करना है, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम मतलब क्या है कि व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट, कौन सी एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट डायरेक्ट कर रहा है किस चीज के लिए? दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये पर्टिकुलर एक्ट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट बोल दे रहा है कि यहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगा, अपने आप अनुमान लगा लेगा, अपने आप। वर्ड यहाँ पे विल नहीं है, द वर्ड इज शैल। कोर्ट को अनुमान लगाना ही है किस बात के लिए? शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, किसी भी फैक्ट को। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, मतलब कोर्ट ने अगर शैल प्रिज्यूम कर लिया है तो ये फैक्ट को हम लोग प्रूव्ड मान के चलेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। तो डिसप्रूव तो हम वुमेन साइड नहीं करेंगे, डिसप्रूव किसको करना है? एक्यूज को डिसप्रूव करे कि नहीं भैया ये 304B के अंदर नहीं आता है, वो किसी और रीजन के लिए अपना सुसाइड की है या उसकी हत्या नहीं हुई है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ अब उनको करना है। लेकिन हम लोग ओनली प्राइमा फेसी केस स्टैंड अप करेंगे, मतलब जो वुमेन पक्ष है, जो पिटिशनर पक्ष है वो विक्टिम, ओनली विक्टिम का पार्ट ओनली हमारा काम है कि प्राइमा फेसी केस हम लोग स्टैंड अप कर देना है। व्हाई? बिकॉज द वर्ड इज इन ईच ऑफ द सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज 304B IPC में भी ये वर्ड क्या है? एंड इट इज शोन। दोनों जगह में आपको सेक्शन में ये वर्ड आपको कॉमन मिलेगा, एंड इट इज शोन। आपको सिर्फ प्राइमा फेसी केस स्टैंड अप करना है। अब जो अपोजिट पार्टी है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज़ को प्रूव करेगा कि नहीं भैया ये पर्टिकुलर मुकदमा 304B IPC के अंदर नहीं आता है। अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज़ को प्रूव कर पाया देन ठीक, अदरवाइज कोर्ट तो अपना अनुमान लगा चुका है, कोर्ट तो मान चुका है एंड इट इज एज प्रूव्ड। कोर्ट क्या मान चुका है? इट शैल रिगार्डेड एज प्रूव्ड। कहाँ पे हमको मिल रहा है? सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, हमको शैल प्रिज्यूम का मतलब पता चल रहा है। और 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको क्या पता चल रहा है कि डाउरी डेथ में कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, आपको वर्ड देखिए लास्ट में, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कॉज द डाउरी डेथ, सच पर्सन हैज कॉज द डाउरी डेथ। मतलब कोर्ट ने फैक्ट तो भाई अपने हिसाब से फैक्ट प्रूव्ड है कि हाँ ये डाउरी डेथ है। अब इसको गलत साबित करना विपक्षी का काम है। विपक्षी इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूफ करता है तब तो वो बच गया, इस एरिना से बाहर हो गया। लेकिन अगर उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया तो भैया कोर्ट तो मान के बैठी है, कोर्ट तो इसको प्रूफ मान के बैठी है कि यस द डाउरी डेथ हैज़ बीन कॉज्ड एंड द डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय दैट सच पर्टिकुलर पर्सन against whom the FIR or the complaint has been lodged by the victim. Okay, explanation देखिए इसमें, for the purpose 113B IPC इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है? for the purpose of this section dowry death shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code. ठीक, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। हम लोगों को एक वर्ड 304B IPC एंड 113B इंडियन एविडेंस एक्ट में कॉमन मिलता है जो कि है इट इज शोन, जिसका मतलब है कि विक्टिम को सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस देना है। किसके रिगार्ड में? डाउरी डेथ के रिगार्ड में, दहेज मृत्यु के रिगार्ड में उसको ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस इनफ है विक्टिम पक्ष में। अब 113B के अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या बताता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट इसको मान के चलेगा कि यस द डेथ हैज बीन कॉज्ड एंड अगेंस्ट whom the FIR or the complaint has been lodged
दैट पर्सन हैज कॉज्ड सच डाउरी डेथ, मतलब सजा तो तय है 7 साल की मिनिमम, जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक, अब अगर हम सेक्शन 4 देखें इंडियन एविडेंस एक्ट की, शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है कि शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में डायरेक्ट किया गया है तो कोर्ट उस फैक्ट को शैल प्रिज्यूम कर लेगा, मतलब वो फैक्ट को हम लोग प्रूव्ड मान के चलेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। अब डिस्प्रूव्ड की बर्डन किस पे है? विपक्षी के ऊपर, कि भैया तुम आओ अभी, अब तुम अपने आप को साबित करो कि तुम 304B आईपीसी के एरिना में नहीं आ रहे हो और तुमको प्राइमा फेसी एविडेंस इनफ नहीं है। आप अपोजिट पार्टी हो, आप हस्बैंड पक्ष हो, यू हैव कॉज्ड द डाउरी डेथ, यू आर द accused person, now you have to prove your fact beyond reasonable doubt. If you are successful, आप अगर सक्सेस हो जाते हैं इस चीज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने में कि आप गलत नहीं हो, आपका मुकदमा किसी भी एंगल से 304B आईपीसी के अंतर्गत नहीं आता है, तब भैया ठीक, अदरवाइज कोर्ट इसको प्रूव्ड मान के चलेगा। ठीक है, मतलब पक्का पनिशमेंट तय है आपका, मिनिमम 7 years, दैट इज इट इज मोर स्ट्रिंजेंट। why the such act or the particular section has been made more stringent? क्यों इसको इतना सख्त बनाया गया कि कोर्ट, हमने प्राइमा फेसी खाली एविडेंस दिया और कोर्ट इसको शैल प्रिज्यूम करके चल रहा है, कोर्ट इसको सच मान के चल रहा है, कोर्ट इस फैक्ट को प्रूव्ड मान के चल रहा है। क्यों इतना स्ट्रिंजेंट, इतना सख्त क्यों बनाया गया? Only to stop the social evil which is taken a form of a monster. ये जो एक दैत्य रूपी जो एक सोशल इविल, एक दहेज कुप्रथा है, इसको बंद कर देना चाहिए। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, ये दुर्भाग्य है कि आप कितने भी कानून बना लीजिए, आपके पास डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट है 113B 4 सेक्शन 4, आपके पास 304B आईपीसी है जिसमें पनिशमेंट भी इतनी सख्त है कि मिनिमम आपका 7 years है, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट स्टिल दहेज कुप्रथा आज भी, चाहे वो शहरी इलाका हो, शिक्षित इलाका हो, शिक्षित घर हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, एडुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। दहेज जैसी कुप्रथा, और दहेज जैसी कुप्रथा के चलते किसी भी महिला को उत्पीड़न, अत्याचार आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे हैं, आपको मिलेगा। तो इन माय ओपिनियन, यू नो, जबकि हम लोग सोशल इंजीनियर हैं, अब जो हो चुका है उसको हम लोग बदल नहीं सकते। इन माय ओपिनियन ओनली, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन, मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रही हूँ। इन माय ओपिनियन दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज लेना नहीं चाहिए कि आप ऐसा कोई चीज़, एक ऐसा बर्डन एक बच्ची के ऊपर ऐसा ट्रेडिशन बना दिए हैं, ऐसा एक कुप्रथा बना दिए हैं कि बच्ची पैदा होने के बाद मम्मी पापा खुश होने के बजाय उसके लिए सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं कितना पैसा अपने को जमा करके रखना पड़ेगा इसकी शादी के लिए। बच्चे अक्सर इतना तक होते मैंने देखा है कि मम्मी पापा अपनी बेटियों को पढ़ाने से ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं कि उसके लिए हम दहेज जमा करें। आप एक ब्रेन को, आप एक शक्ति को, आप एक पता नहीं वो किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन ख़त्म कर देते हैं आप उसकी जो सीमाएं हैं उसको आप पढ़ाते नहीं हैं, लिखाते नहीं हैं,
फिर आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर आप दहेज देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जानिए कि जो इंसान, जो फैमिली शादी तय होने से पहले हो या शादी तय होते वक्त हो या एट द टाइम ऑफ मैरिज हो, जब शादी हो रही हो या शादी के बाद हो, अगर वो दहेज मांगता है तो कभी आप उस मॉन्स्टर की भूख खत्म नहीं कर सकते। यू कैन नेवर एवर स्टॉप हिज हंगर। आज वो कुछ डिमांड कर रहा है, आपने उसकी डिमांड फुलफिल कर दी, चाहे कैसे भी हो, तो कल उसकी डिमांड दूसरी होगी, परसों उसकी डिमांड दूसरी होगी। और जिसके चलते जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड होता है ना, वो होता है वो बेचारी वोमेन, वो होता है वो बेचारी वोमेन। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सुने होंगे कि जहाँ पे लड़की को जला के मार दिया गया, और जलाते वक्त वो लोग सोचते तक नहीं कि अपनी बेटी होती तो, है ना। ये हमारी बहुत एक दुर्भाग्यवश बात है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा है कि आप दहेज ना ले, दहेज ना दें। ये दहेज जैसी कुप्रथा को आप यहीं पे स्टॉप कर दें कि आगे भविष्य में आने वाली जितनी लड़की बच्चियां हो, वो लोग खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जी सके। उसकी मम्मी पापा बेटा पैदा होने में जितनी खुश होते हैं, उतनी बच्चियां पैदा होने में भी उतनी खुश हो। उसको ऐसे टॉर्चर ना किया जाए कि उसके लिए डाउरी के लिए, ओनली कुछ पैसों के लिए एक जान ले लेते हैं, ऐसा ना हो। बाकी इट्स माय ओपिनियन। तो लेट्स नॉट गेट इनटू डीप ऑफ दिस। तो हमारा मेन चीज़ क्या है, 304B IPC। आप अपने बुक में भी इस चीज़ को मार्क करके रखिएगा। 304B IPC रेड विथ 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, read with section 4 Indian Evidence Act and also 498A IPC. ठीक, okay. Now I would like to discuss one case which is State of Himachal Pradesh versus Niku Ram 1995 Supreme Court. यहाँ पे the Honorable Court इस जजमेंट को लिखने से पहले फर्स्ट वर्ड विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूज्ड इज डाउरी, डाउरी, डाउरी। 3 बार ये शब्द को इस्तेमाल किया गया, डाउरी, 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 बिकॉज द डाउरी हैज़ बीन डिमांडेड इन 3 ओकेशन, बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड जस्ट आफ्टर द मैरिज। ओके, ठीक, यहाँ तक। नाउ हम लोग एक सेकंड पोर्शन में आते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है कि दहेज जैसी कुप्रथा जो सोसाइटी में एक ट्रेडिशन का रूप दे दिया गया है, और कुछ लोग तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि अरे इतना पैसा हमने दहेज दिया या इतना पैसा हमने दहेज लिया। तो दिस इज़ नॉट अ सोशल रेपुटेशन, दिस इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी सोशल रेपुटेशन फॉर यू। हाँ, ये ज़रूर क्रिएट कर सकता है आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत, कि हाँ भैया कि आप गलत हो। एक प्रिजम्पशन सोसाइटी के माइंड में आ जाता है कि आप गलत हो, कि आप डाउरी ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं। यह हमारी दुर्भाग्य है कि इतने सारे एक्ट्स होने के बाद भी कि हमारा जो ये डाउरी वाला जो सिस्टम है, इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हमको कहाँ मिलेगा? प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ हमको मिलेगा 113B IPC और 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, वेयर द वर्ड इज शैल प्रिज्यूम, एंड शैल प्रिज्यूम का हमको डेफिनेशन क्या कहाँ मिलेगा? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो मेनली 304B IPC read with 113B इंडियन एविडेंस एक्ट एंड ऑल्सो सेक्शन 4
of the Indian Evidence Act and also read with 498A IPC because there is cruelty too. Okay, so now coming to in our second topic, which is difference between section 498A IPC and 304B IPC. ठीक, तो बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट इन दोनों सेक्शन में आपको मिलेगा वो है क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट. ठीक, अब 304B IPC में आपको क्रुएल्टी या हैरेसमेंट की डेफिनेशन नहीं मिलेगी. यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया गया है कि क्रुएल्टी और हैरेसमेंट क्या होता है. ये मीनिंग आपको यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं मिलेगी इन 304B IPC. बट व्हेन यू गो टू 498A IPC, प्लीज फॉर अ मोमेंट कम टू 498A IPC. यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में क्रुएल्टी का मीनिंग मिलेगा. एक्सप्लेनेशन के जो पहला है ए में आपको मिलेगा क्रुएल्टी का मीन एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grievous injury or danger of life, limb or health, whether mental or physical of the woman. और बी में आपको हेरासमेंट वाला पार्ट मिलेगा. हेरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हेरासमेंट इज विथ ए व्यू टू coercing her or any person related to her to meet any अनलॉफुल डिमांड. इस वर्ड को मार्क करिए, अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ये वर्ड हमको अगेन कहाँ मिलता है? प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी इन द डेफिनेशन ऑफ डाउरी. कहाँ पे? सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. देखिए, एक सबसे इंटर रिलेटेड है. आप इंटर रिलेशन जब सीख लेंगे सेक्शन का तो आपको बड़ा मजा आएगा. ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा? सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड. मतलब यहाँ पे मनी वाला बात कर रहा है. तो मनी कहाँ पे? डाउरी में. मतलब ये जो बात कर रहा है ये भी कहीं ना कहीं डाउरी डेट से कनेक्टेड है. ठीक, तो आपको हम पहला जो हमको कॉमन मिलता है वो है क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट, जो हमको दोनों सेक्शन में मिलता है. दूसरा है डिफरेंस. पहला डिफरेंस हमको मिलता है कि यहाँ पे आपको 304B IPC में डेफिनेशन नहीं मिलेगी क्रुएल्टी की और हैरेसमेंट की, लेकिन 498A IPC की एक्सप्लेनेशन में जब आप जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन ए में आपको क्रुएल्टी की मतलब मिलेगी एंड एक्सप्लेनेशन बी में आपको हैरेसमेंट की मतलब मिलेगी, जहाँ पे आपको शब्द मिलेंगे अनलॉफुल डिमांड फॉर वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी. और ये दोनों शब्द आपको मिलेंगे सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कि डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज एग्रीड टू बी पेड इन बाय वन पार्टी ऑफ द मैरिज टू द अदर पार्टी ऑफ द मैरिज. ठीक, बाकी इम्प्लाइड है कि वो वुमेन होना चाहिए. अब वुमेन शब्द है, इसमें भी आप गौर करिए, वुमेन शब्द है. नो वेयर इन द 2 सेक्शन देयर इज ए वर्ड लाइक वाइफ. क्यों? बिकॉज ये दोनों सेक्शन वुमेन प्रोटेक्टिव सेक्शन है, ओनली टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द सोशल इविल ऑफ क्रुएल्टी, जो हमको 498A IPC में मिला और 304B IPC में मिला. तो ऑब्वियसली 304B IPC की इतनी मिसयूज नहीं है, वेयर एज 498A IPC की इट इज़ इमेंसली मिसयूज्ड नाउअडेज. बट वुमेन प्रोटेक्टिव सेक्शन है, लेकिन जबकि ये शब्द वुमेन है तो मतलब ये इम्प्लाइड है कि दहेज वाली जो बात है ये ऑब्वियसली वाइफ ही देगी. तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है, वाइफ डजंट
इंक्लूड एनी लीगली वेडेड वाइफ। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये शादी लीगली है या पहली शादी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ such a woman has acquired the position of wife, whether by a valid marriage or by a illegal or irregular or void marriage, then also she is a woman. And if any such cruelty or harassment has been done against that particular woman, then the accused or the husband or any other person or relative of the husband come within the arena of that particular two section 304B IPC and 498A IPC। हम लोग क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा देखिए इसमें, ये जो 7 years वाला जो टाइम पीरियड है, ये आपको 498A IPC में नहीं मिलेगी। इसीलिए ये 498A IPC को इतना मिसयूज़ किया जाता है कि कभी भी आप लगा दीजिए 498A IPC। भैया 7 साल का फंडा तो नहीं है, लेकिन 304B IPC को मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। वाई? ओनली बिकॉज यहाँ पे मेनली टर्म जो पीरियड है 7 years ऑफ दैट मैरिज, ये आपको दूसरी डिफरेंस मिल जाती है। ठीक, okay, I hope I am clear till now। I hope I am clear till now। So I have discussed all the arena of 304B IPC and 498 IPC। तो मेरा पहला सेशन था, बट इन द 2 सेशन, मतलब ये स्टारडे वाला और आज में मैंने 304B IPC की। आई होप आई हैव completed whole the arena, the meaning of dowry, what the particular section says, its evidence and the presumption which is given in section 113B Indian Evidence Act, and the word is shall presume, and what does shall presume mean, section 4 of the Indian Evidence Act, and the difference between the two and the common between the two section। ठीक है, एंड द क्लासिफिकेशन ऑल्सो 7 years की इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंस क्यों है, एंड सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या है, इट इज शोन का मतलब क्या है, हम लोगों ने हर एक एरिना अच्छे से देखा है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर लिखिए। और ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप अपने से जानना चाहते हैं तो प्लीज़, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा हैपजर्ड मत करिए कि अभी जैसे अभी हम लोग ये 300 क्रुएल्टी में है, 304B IPC और ऐसा, तो अचानक से हम लोग दूसरा किसी एकदम डिफरेंट एरिना में फट से जंप नहीं कर सकते। यस, ऑब्वियसली आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दैट IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CPC। हम लोग हर एक लॉ को, हर एक वर्ड को सीखेंगे, बट कीप पेशेंस एंड बी विथ मी and we will learn law in a very interesting way, and definitely one day all of you, if you are connected with me, if you be connected with me, you will be master in law। So before completing today's session, I would like to share one thought for the day। एंग्जाइटी वर्ड सुनने से बड़ा बुरा लगता है एंग्जाइटी, लेकिन एंग्जाइटी का एक फ़ायदा ये है कि जब तक आप सोल्यूशन में नहीं पहुंचते हैं तब तक आपकी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं। वंस यू रीच द सोल्यूशन तो आपको आपको एंग्जाइटी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ये एंग्जाइटी का बड़ा अच्छा चीज़ है। एंग्जाइटी शुड बी यूज्ड एज ए कैटापुल्ट टू हेल्प यू मूव फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एंग्जाइटी आपको है तो आप अपने आप को बीमार सोच के ना उदास होकर मत बैठा करिए। आप एंग्जाइटी अगर आपको है
तो मैं कल भी शायद बोली थी कि किसी भी चीज़ का ब्लैक साइड और वाइट साइड होता है। तो एंग्जाइटी जैसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वाइट साइड क्या है कि आपको तुरंत आपका ब्रेन बोल रहा है कि आप उस पोजीशन में पहुंचिए, उसका सोल्यूशन निकालिए, चाहे आपके पास किस भी चीज़ कोई भी चीज़ हो। तो पॉसिबल अगर है कि आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, देन प्लीज़ एंग्जाइटी को कैटापुल्ट की तरह यूज़ करिए और अपने सोल्यूशन तक पहुंचिए। उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सोचिए जिसको आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते सोचते ओवर थिंकिंग होके एकदम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाए। नो, उसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। इफ़ यू कैन डू दैट देन प्लीज़ थिंक ऑफ इट, डोंट थिंक ऑफ इट बट जस्ट तुरंत एक्शन करिए। अगर आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, तो डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट। और लॉ को बड़े अच्छे से पढ़िए, बहुत एन्जॉयबल चीज़ें से पढ़िए और उसका इंटर रिलेशन देखिए। तो ये जो वेब में जो घूमेंगे और घूम के जब निकल के आएंगे ना, तब जो आपको मज़ा आएगा ना लॉ का, and that will be a fantastic feeling. And if the video is helpful for you, please like, subscribe and share my YouTube channel, and please be with me थ्रू माई यूट्यूब चैनल। और आपके मन में कुछ भी ऐसे डाउट्स है लॉ रिलेटिंग और अदर रिलेटिंग, देन प्लीज़ share this in comment box. Thank you so much for today.